अच्छा चलें, अब ये है कि हम जरा एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। ठीक है, दिस इज मार्च 20 पेपर 21 क्वेश्चन नंबर 3। मार्च 20 पेपर 21 question number 3. They're saying that nitric acid can be made by reacting nitrogen dioxide with water, right? So let's suppose when we react nitrogen dioxide when reacts with water, we get nitric acid HNO3 plus nitrogen monoxide. बैलेंस करें तो ये this would be 2HNO3, ये reaction balance हो गया. Now the question says that the enthalpy change for the reaction, let's suppose इस reaction की जो भी enthalpy change है हम इसको represent कर देते हैं by delta HR, right? So the enthalpy change of this reaction is delta HR, and this can be measured, the enthalpy change for the reaction can be measured indirectly using Hess's law. They're saying that the enthalpy change for this reaction, the delta HR for this reaction can be measured indirectly using Hess's law. ठीक है, मतलब Hess's law की basically application क्या है कि we can use Hess's law to find out delta H for those reactions which we cannot find out directly. Either they are very fast reaction, for example, this is a very fast reaction. When we add nitrogen dioxide in water, let's suppose if we have a beaker full of water, ठीक है, और इसमें अगर हम NO2 गैस जो है वो ऐड करते हैं, when we add nitrogen dioxide gas, तो ये काफी ज्यादा फास्ट रिएक्शन होता है, तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो, या जो भी एनर्जी चेंज आएगा वो इतनी ज्यादा होगी कि आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, एंड दैट्स व्हाई वी आर डूइंग इट indirectly. Now the first part of the question says that explain what is meant by the term standard enthalpy of formation. Standard enthalpy of formation, ठीक है, इसकी आपको डेफिनेशन लिखनी है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. हाँ जी, व्हाट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन, याद है? Energy required to form one mole from its elements. Energy change which occurs, required लाजमी नहीं है क्योंकि हमने कहा था प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है. तो एनर्जी चेंज which occurs when one mole of a substance formed from its elements. ठीक है, ये फॉर्मेशन है, जस्ट सिंपल आपने डेफिनेशन लिखी. ठीक है जी बेटा, तो वो जस्ट सिंपल आपने फॉर्मेशन की डेफिनेशन लिख देनी है कि व्हेन वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस, वो हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी, तो वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, तो फॉर्मेशन की डेफिनेशन आ जाएगी. देन फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है जो एक्चुअल हमें यहाँ पे सॉल्व करना है, दैट इज कि कैलकुलेट द हेसेस, कंप्लीट द हेसेस साइकिल, यानी यहाँ पे आपने साइकिल ड्रॉ करना है, कंप्लीट द हेसेस साइकिल यूजिंग द वैल्यूज गिवन इन द टेबल एंड हेंस कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज डेल्टा HR फॉर दिस रिएक्शन. ठीक है, अब जो वैल्यूज हमें गिवन है मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ कि NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, अच्छा, they have given us the formation energies delta H formation in kilojoules per mole. ठीक है जी, तो वैल्यूज गिवन है और वैल्यूज क्या है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इसकी वैल्यू है, सॉरी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसकी वैल्यू है 34 kilojoules per mole. वाटर H2O, the formation enthalpy for water is -286. Formation enthalpy for nitric acid HNO3 is -173, and the formation enthalpy for nitrogen monoxide is 91.1. ठीक है, and they have given us the reaction हम फिर दोबारा यहाँ पे लिख देते हैं कि 3 moles of nitrogen dioxide reacts with H2O water to form 2 moles of nitric acid 2HNO3 plus nitrogen monoxide, and we have to calculate the delta HR for this reaction by using this data. And the question is कि complete the Hess's cycle, यानी ये जो आपको रिएक्शन दिया गया है इसको पूरा Hess's cycle में जो है वो आपने ड्रॉ करना है. complete the Hess's cycle
using the values given in the table and hence calculate the delta HR। फिर फाइनली आपको ये डेल्टा HR कैलकुलेट करना है। हाँ जी, ये खुद सॉल्व करेंगे आप या मैं सॉल्व कराऊं? सर आप पहले एक करवाएं फिर हम दूसरे खुद करेंगे। चलें, तो अब क्योंकि देखें इसमें अब क्या है कि सारा डेटा, सबसे पहली चीज आपने क्या देखनी है कि जो डेटा गिवन है हमारे पास ये कंप्लीटली फॉर्मेशन डेटा है, मतलब जितनी भी वैल्यूज हैं दे हैव गिवन अस फॉर्मेशन डेटा डेल्टा एच एफ। और अगर फॉर्मेशन डेटा गिवन हो, अब देखें ये जो क्वेश्चन है इसमें इन्होंने साइकिल ड्रॉ करने का बोला है। मोस्टली क्वेश्चंस में साइकिल ड्रॉ करने को नहीं बोला जाता, डायरेक्टली आपने डेल्टा एच कैलकुलेट करनी होती है, ठीक है। लेकिन जहां साइकिल ड्रॉ करने का बोल दिया तो वहां फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब साइकिल किस तरह से ड्रॉ करना है, जब सारा डेटा फॉर्मेशन का होगा तो जो साइकिल यहाँ पे ड्रॉ होगा दैट इज नोन एज फॉर्मेशन साइकिल। दैट मींस वी हैव टू ड्रॉ फॉर्मेशन साइकिल। और फॉर्मेशन साइकिल हमने लास्ट टाइम भी ड्रॉ किया था। फॉर्मेशन साइकिल में जो आपकी थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल है, ठीक है, लेट्स से मैं कह देता हूँ कि यहाँ पे मैंने थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल ड्रॉ करनी है, तो इसमें थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल में आप क्या लिखेंगे? हाँ जी बेटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, याद है किसी को? क्योंकि देखिए फॉर्मेशंस गिवन है ना आपके पास, फॉर्मेशंस गिवन है तो इसका मतलब मुझे इसको फॉर्मेशन वैल्यूज से सॉल्व करना है। तो जब सारा डेटा फॉर्मेशन का है तो फॉर्मेशन साइकिल कैसे बनेगा, मतलब ये जस्ट सिंपल आपको इस किस्म का एक साइकिल ड्रॉ करना है कि ए कन्वर्टिंग इनटू बी। तो हमने कहा जी ए को पहले हम कन्वर्ट करते हैं सी में और फिर देन सी कन्वर्ट होगा बी में। तो इस टाइप का आपको एक साइकिल जो है वो ड्रॉ करना है, ठीक है। अब इसमें ये जो साइड है आप कह सकते हैं कि दिस इज ए, दिस साइड इज रिप्रेजेंटिंग बी। अब सी जो है ये आपने खुद से आइडेंटिफाई करना है कि सी क्या होगा। तो आपने कहा जी क्योंकि फॉर्मेशन डेटा है तो जो थर्ड साइड होगी, साइड सी जो है वो एलिमेंट्स होंगे इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, ठीक है। तो अगर आप रिएक्टेंट साइड पे देखें तो वी हैव 3 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। तो हम सिंपल अपने जो थर्ड साइड होगी उसमें नाइट्रोजन जो है वो N2 स्टैंडर्ड स्टेट में और कितने 3.5 मोल, ठीक है। ये आपने एलिमेंट्स ले लिए, प्लस दूसरा एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन अगर काउंट करें तो 3 2 6, 6 + 1 7। प्रोडक्ट साइड पर भी देखें तो 2 3 6, 6 + 1 7। तो थर्ड साइड पे भी कितने ऑक्सीजन होने चाहिए, 7/2 O2 गैस। प्लस उसके अलावा क्या गिवन है हमारे पास, हाइड्रोजन H2। प्रोडक्ट साइड पर भी 2 हाइड्रोजन, तो थर्ड साइड भी H2 गैस। सर ये जी हम बेटा, 7/2 ऑक्सीजन क्यों लिख रहे हैं? बैलेंस कर रहे हैं ना बेटा, तीनों साइड्स बराबर होनी चाहिए। अगर आप काउंट करें तीनों, मतलब रिएक्टेंट साइड पर कितने ऑक्सीजन है, 3 2 6, 6 + 1 7। प्रोडक्ट साइड पर 2 3 6, 6 + 1 7। तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितने होने चाहिए, 7 ही होने चाहिए। तो 7 करने के लिए इसको 7/2 लिख दिया। जी हाँ सर। जी, जी यहाँ तक बात सबको समझ में आ रही है? यानी जब भी आपने फॉर्मेशन साइकिल ड्रॉ करना है तो फॉर्मेशन साइकिल में जो आपकी थर्ड साइड होगी, ठीक है, ये जो साइड होगी ये हमेशा क्या होनी चाहिए, दिस मस्ट बी रिएक्टेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, ठीक है। वेन एवर वी ड्रॉ द फॉर्मेशन साइकिल तो इसमें जो थर्ड साइड होगी दैट वुड बी रिएक्टेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। जी यहां तक सबको क्लियर है बेटा? जी सर। जी सर। ठीक है जी। तो अब क्या है कि अब आपने एरोज ड्रॉ करने हैं, मतलब साइकिल कंप्लीट करना है। और साइकिल कंप्लीट करने के लिए जो एरोज आप ड्रॉ करेंगे, अब बताएं ये अपवर्ड एरोज बनेंगे या डाउनवर्ड एरोज बनेंगे? सर अपवर्ड होगा ना? अपवर्ड एरोज होंगे, क्यों, रीजन? सर क्योंकि ये जो एलिमेंट्स हैं वो मिलकर वो बना रहे हैं हाँ, क्योंकि रिएक्टेंट। फॉर्मेशन डेटा है तो मैं कह सकता हूँ कि जी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बना रहे हैं। तो ये फॉर्मेशन है NO2 की, वाटर की, नाइट्रिक एसिड की, NO की। तो जो एरोज होंगे वो अपवर्ड ड्रॉ होंगे, ठीक है। वी हैव टू ड्रॉ अपवर्ड एरोज, ठीक है जी। इसी तरीके से यहाँ पे भी ये आप अपवर्ड एरो ड्रॉ करेंगे। तो अब ये तो आपने एरोस ड्रॉ कर दिए, अब इसको हम मतलब लेबल कर देते हैं। तो मैं इनको लेट सपोज एनर्जी चेंजेस को नाम दे देता हूँ कि दिस इज एनर्जी चेंज 1, दिस इज एनर्जी चेंज 2 एंड दिस इज एनर्जी चेंज 3। तो आप मुझे बताएं आपकी जो एनर्जी चेंज 2 है ये कौन सी एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है?
34 और -286 को। नहीं, मतलब नाम बताएं कि एनर्जी चेंज 2 जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वाटर। प्लस डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ वाटर। जी, ये सही लिखा है मैंने या कोई गलती है इसमें? 3 मोल्स होंगे। 3 मोल्स होंगे। रीजन? सर 3 वो एन है ना इसके लिए। हाँ, क्योंकि बेसिकली अगर आप अपने पास रिएक्शन में देखें तो हमने फॉर्मेशन क्या पढ़ी है? 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस फॉर्म। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के 3 मोल बन रहे हैं। तो इसका मतलब जो भी NO2 की फॉर्मेशन है दैट वुड बी मल्टीप्लाइड बाय 3। और वाटर का क्योंकि एक ही मोल है, वाटर का 1 मोल बन रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 मोल ही होगा। ऐसी प्रोडक्ट साइड पे बताएं क्या एनर्जी चेंजेस आएंगे, जल्दी से बताएं शाबाश। फॉर्मेशन ऑफ HNO3 और ब्रैकेट में 2 नाइट्रिक एसिड मल्टीप्लाई बाय 2। 2, क्योंकि 2 मोल्स हैं, प्लस फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। तो अब आपके पास सारे एनर्जी चेंजेस आ गए, साइकिल ड्रॉ हो गई। अब बताएं कौन सी साइड्स ऐड होंगी, किन 2 साइड्स को किसके बराबर ले लें? सर जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर है उनको इक्वल्स टू रखेंगे इनके प्रोडक्ट वाले साइड को। मतलब आप कोई भी 2 साइड्स ऐड कर सकते हैं, बट ज्यादा आसान क्या है कि जो हेड टू टेल रूल से इजीली ऐड हो। तो अगर आप देखें तो जो रिएक्शन 2 है इसका एरो हेड रिएक्शन 1 की टेल से मिल रहा है, तो मैं इन दोनों को डायरेक्टली ऐड कर सकता हूँ। इन दोनों को मैं 3 के बराबर ले लेता हूँ। यानी मैं सिंपल ये कह सकता हूँ कि रिएक्शन 2 और 1 को अगर ऐड करेंगे तो ये बराबर होगा 3 के। समझ आ रही है ये बात? जी सर। ठीक है ना? तो आपने जस्ट सिंपल इसको हेड टू टेल रूल फॉलो करते हुए, क्योंकि यहाँ ये एरो हेड ये टेल से ज्वाइन हो रहा था, तो हमने 2 और 1 को ऐड कर दिया। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ से इक्वेशन बनाऊं तो इक्वेशन क्या बनेगी? दैट वुड बी डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ NO2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ वाटर। आगे क्या आएगा? प्लस, जल्दी से बताएं शाबाश। सर 2HNO3 प्लस सर डेल्टा HR। डेल्टा एच आर आएगा। आप 2 और 1 को ऐड करें, देखिए ये दोनों ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो ये तो आपने ये वाला जो एनर्जी चेंज है ये आ गया आपके पास, यानी ये आपने क्या शो कर दिया, ये रिएक्शन यानी ये जो स्टेप 2 है ये बेसिकली ये 2 वाली एनर्जीज आ गई। अब इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ डेल्टा एच आर प्लस डेल्टा एच आर इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है? साइड 3 के। साइड 3 क्या है? डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ HNO3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ये इक्वेशन समझ में आ रही है बेटा आप लोगों को? जी सर। सर ये हाँ, HR वाला मुझे समझ नहीं आया। देखें ना, हम इन 2 को ऐड कर रहे हैं। अगर आप देखें तो मैं रिएक्शन 2 को और 1 को ऐड कर रहा हूँ, यानी इन दोनों एनर्जीज को आपने ऐड करना है। तो 2 पे यानी कौन सी एनर्जीज है? अगर आप 2 देखें तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर है, इन दोनों को हमने ऐड किया और इसमें डेल्टा एच आर भी ऐड कर दिया। समझ आ रही बात या नहीं? नहीं सर मुझे नहीं आई है समझ। देखें ना, आप सिंपल ये देखें कि हम इन दो, एक मैं ये यहाँ पे सिंपल इस तरह से आप ड्रॉ कर लें। ये क्या है? NO2 रिएक्टिंग विद वाटर, क्या बन रहा है? HNO3 प्लस नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ठीक है, और थर्ड साइड क्या थी? आपने एलिमेंट्स ले लिए थे कि 3/2 नाइट्रोजन प्लस 7/2 ऑक्सीजन प्लस H2। अब ये साइड हो गई, ये साइड हो गई। ठीक है, अब मैं इन दोनों साइड्स को ऐड कर रहा हूँ। इन दोनों साइड्स को, यानी मैं कह रहा हूँ कि ये दोनों साइड्स जो हैं ये बराबर हैं इस थर्ड साइड के। ठीक है, तो अब ये जो आपके पास साइड है, यानी ये वाली जो साइड है, ये कौन सी एनर्जीज है? ये हो गई फॉर्मेशन ऑफ NO2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ये सपोज आपने इसको 1 का नाम दे दिया, और 1 और इसके साथ हम किसको ऐड कर रहे हैं? लेट्स से ये जो एनर्जी चेंज है इसको मैंने 2 का नाम दे दिया, तो मैं कह रहा हूँ कि 1 और 2 को ऐड करना है। 1 और 2 बराबर हैं 3 के, इसको हमने 3 का नाम दे दिया, तो 1 और 2 को हम ऐड कर लेंगे। जैसे हमने हैसेस लॉ पढ़ा था ना कि एनर्जी चेंज डज नॉट डिपेंड अपॉन रूट।
तो हम ये कह रहे हैं कि आइदर वी डायरेक्टली कन्वर्ट दीज एलिमेंट्स इनटू नाइट्रिक एसिड प्लस नाइट NO, और फर्स्ट वी कन्वर्ट देम इनटू NO2 इन वाटर एंड देन ये बने। तो मतलब या तो आप डायरेक्टली इसको कन्वर्ट कर दें इसमें, या फिर पहले ये बनाएं फिर ये बनाएं, दोनों साइड्स बराबर हों। आप समझ में आ रही है बेटा बात? जी और ये जी जो सर, अब टू आ गया वो सर, ये वो जो मिक्स टू हो है, गए थे डिजिट। ठीक है, और ये जो 2 है इसको हमने क्या नाम दिया? डेल्टा HR। ठीक है, तो मैंने ये साइड और डेल्टा HR दोनों ऐड कर दिए। अब क्लियर है? जी सर, अब क्लियर है। ठीक है, चलें इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, अच्छा अब मुझे आप एक बात बताएं, यहाँ पे सबको क्लियर है बेटा? यहाँ तक किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अच्छा अब देखें, अब मुझे ये बताएं कि ये जो साइड है, मतलब ये जो फॉर्मेशन ऑफ NO2, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, सॉल्व तो हम इसको कर लेंगे, बट अब मैं जरा इसको जनरलाइज कर रहा हूँ। फॉर्मेशन ऑफ NO2 और H2O अगर आप देखें तो ये रिएक्शन में कहाँ पे मौजूद है? ये रिएक्टेंट साइड पे मौजूद है। यानी मैं सिंपल NO2 और H2O की जो फॉर्मेशन है, मैं इसे कह सकता हूँ कि दिस इज डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। यानी इस पूरे प्रोसेस में ये जो NO2 की और वाटर की जो फॉर्मेशन है, ये क्या है? फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अगर मैं इसको जनरलाइज करूँ, बात समझ में आ रही है बेटा? जी सर। ये रिएक्टेंट्स है ना, तो मैंने इनको सिंपल कह दिया कि बजाय इसको मैं अलग अलग लिखने के, अगर मैं डायरेक्ट लिख दूं फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स प्लस डेल्टा HR इज इक्वल टू नाइट्रिक एसिड और NO क्या है? नाइट्रिक एसिड और प्रोडक्ट। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये क्या है? ये प्रोडक्ट है। ठीक है, ये क्या है? दिस इज प्रोडक्ट। तो अगर मैं इसको जनरलाइज करूं तो मैं सिंपल क्या लिख सकता हूँ कि दिस इज इक्वल टू डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाता है कि अगर आपके पास फॉर्मेशन डेटा हो एंड यू वांट टू फाइंड आउट डेल्टा HR, तो दैट वुड बी इक्वल टू डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, ये आपके पास सिंपल फॉर्मूला आ गया कि अगर आपको साइकिल बनाने को ना कहा जाए या P1 में कोई इस किस्म का सवाल आए तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बट जस्ट मेक श्योर कि ये आपको ध्यान में रहे कि दिस फॉर्मूला वी कैन ओनली यूज दिस फॉर फॉर्मेशन साइकिल। कि अगर सारा डेटा फॉर्मेशन का है तो फिर आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि प्रोडक्ट साइड की फॉर्मेशन वैल्यू निकालें, रिएक्टेंट साइड की फॉर्मेशन वैल्यू निकालें, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन में से रिएक्टेंट की फॉर्मेशन को माइनस करें एंड यू विल गेट योर आंसर। जी समझ आ रही है बात? जी सर। ठीक है, चलें अब एक काम करें, आपके पास ये इक्वेशन आ गई है, आपके पास ये डेटा गिवन है, आप मुझे डेल्टा HR की वैल्यू निकाल के दें शाबाश जल्दी से। सर -70.9। -70.9। हाँ जी, बाकी सबने भी सॉल्व किया है? हाँ जी, तो ये हमने फॉर्मेशन ऑफ NO2 कितनी गिवन थी? दैट वाज 34। ठीक है, तो ये मैं इसको यहाँ पे साथ साथ सॉल्व कर लेता हूँ। तो दैट इज इक्वल्स टू 34 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस फॉर्मेशन ऑफ वाटर कितनी है? -286 प्लस डेल्टा HR फाइंड आउट करनी है, दैट इज इक्वल्स टू फॉर्मेशन ऑफ HNO3 विच इज -173 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड 91.1। तो अब अगर आप इस सब को सॉल्व करें तो डेल्टा HR बराबर होगा, क्या आंसर आ रहा है बेटा? 9 -70.9। -70.9 किलो जूल्स पर मोल, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है जी, ये आंसर आ जाएगा। हाँ जी, यहाँ तक सबको समझ में आ गई ये बात? किसी को इसमें कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? नहीं सर, क्लियर है। सबको क्लियर है?